Director Cardiology and Artemis Cardiac Care at Artemis Hospital, Gurgaon. Sir. नवीन गोयल, जिला सचिव भाजपा और हमारे जो संस्था है कैनमिन एनजीओ उसका मैं को-फाउंडर। Sir. I am Jaspreet Sharma. I am retired with the Federation of Senior Citizens Forum as a Vice President. Thank you, sir. Ma'am. Good morning. My name is Amisha Chaudhary and I'm founder of Dynam Events, basically a national beauty pageant, and I'm feeling wonderful sitting in between medical team and full of glamour and portraying myself from such a field which is just opposite to this. Thank you. Thank you for having me. Sir. I'm Dr. Umesh Sehgal. By profession, I'm a dentist, but I'm president of Gurgaon Ophthalmologist Club. I've been invited here by Dr. Sandhu and Mr. Fareed to be a part of this occasion, and because I think laughter and art both are synonyms. Because heart has got the same shape like smile, So when you have smile, your heart smiles, and when your heart smiles, then you smile yourself, and you change yourself. When you change yourself, your society changes and your nation changes, and they all improve. Thank you. I'm Captain Harsh from Innova Elder Care. We look after elders. And we are working very closely with Artemis to provide COVID care at home. Thank you. So आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी कि जिस तरह से वर्ल्ड हार्ट डे हर बार सेलिब्रेट किया जाता है, तो आज क्या है सेलिब्रेशन में? कैमरे की तरफ। So जैसे कि आपको मालूम है कि heart disease is the #1 killer worldwide of all mortality. So it is very important कि हम heart disease को prevent करें, because treatment is only a later step. So prevention is the best. And each year, World Heart Day is celebrated to create awareness among everyone about what it is to take to make your heart healthy and keep it healthy. And each year there is a theme, and this year's theme is use heart to beat cardiovascular diseases. So meaning that you use your heart, you use your love to beat all the cardiovascular diseases. And what it means for you, for everyone, is that first of all you must have the knowledge yourself as to what it takes to prevent heart disease, which you all know but fail to practice. It is like leading a healthy, active life, healthy eating, keeping a check on your blood pressure, getting your blood pressures checked, sugar checked, your cholesterol levels checked, which people fail to do. So first of all, the first step is that you yourself should have that much of knowledge and information. So that comes next, step 2. Then you can look after the ones you love. That is your family, your relatives. So these are the people whom you have to get after and tell them that they have to get their blood pressures checked, their sugars checked, etc. And then the third step is that you go beyond this. And now we are talking about the workplace and colleagues and people whom you meet in your daily walk of life. तो इन लोगों को भी आपने मोटिवेट करना है कि अपना ब्लड प्रेशर चेक करें, अपने शुगर चेक करें और कोलेस्ट्रॉल चेक करें। इसी से ही ये थीम बना है कि यूज योर हार्ट एंड लव टू बीट हार्ट डिजीजेस। एंड दिस थीम इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउअडेज बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई सी दैट पीपल कम टू मी विद वेरी हाई ब्लड प्रेशर एंड आई आस्क देम कि आपने पिछली बार बीपी कब मेजर किया था, और वो बोलते हैं सर याद नहीं, हमने कभी नहीं किया। तो ये सिंपल चीज़ें जैसे कि अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना रेगुलरली, अपने ब्लड टेस्ट कराना रेगुलरली, ये एंड लीडिंग एन एक्टिव लाइफ एंड हेल्दी ईटिंग विल गो अ लॉन्ग वे इन प्रिवेंटिंग हार्ट डिजीज। सर आपने थीम रखा है यूज टू बीट, तो इसका थोड़ा सा डिटेल बताइए। यूज टू बीट का क्या आपने थीम क्यों रखा है? यूज टू बीट थीम रखा है, वर्ल्ड हार्ट डे का थीम इज use heart to beat heart diseases, which means use your own heart and love to care for everybody around you. सर कितने वर्ल्ड हार्ट डे सेलिब्रेट किया जा रहा है आर्टेमिस के थ्रू, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं कहना चाहूँगा कि सारे लोगों को हार्ट डिज़ीज़ के बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए, उनको क्या क्या करना चाहिए ताकि उनका हार्ट हेल्दी रहे, ये सब पता होना चाहिए। इसी का मकसद है हमारा ये सब अवेयरनेस क्रिएट करने का, कि आप डेली अपना एक्सरसाइज करें,
बैलेंस्ड फूड खाएं और अपने नंबर्स को ध्यान में रखें कि मेरा ब्लड प्रेशर, मेरी कोलेस्ट्रॉल, मेरे शुगर कितना है, और अगर ज़्यादा है तो उसकी सलाह लें डॉक्टर से और मेडिसिन एंड डाइट कंट्रोल करें। किस तरह की डाइट लेनी चाहिए, क्या हेल्दी डाइट होनी चाहिए जिससे कि हार्ट की प्रॉब्लम आगे आने वाले टाइम में फेस ना करनी चाहिए? ये सवाल पूछने की ज़रूरत नहीं है, सबको मालूम है लेकिन कोई उसको फॉलो नहीं करता है। सबको मालूम है कि क्या क्या उनके लिए हानिकारक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप रोज़ समोसे और छोले भटूरे खाएंगे तो वो हेल्दी है क्या, तो आप बोलेंगे कि नहीं है। तो आपको जहाँ से ज़्यादा ग्रीन वेजिटेबल्स, सैलड्स और प्रोटीन्स जैसे कि एग प्रोटीन, एग वाइट एंड लेस अमाउंट ऑफ फैट, चीज़, बटर, ये सब खाएं। और खाने में जब घर में खाना बना रहे हैं जैसे नॉर्मल दाल सब्जी रोटी, उसमें थोड़ा घी तेल की मात्रा कम रखें। सर, इंडिया में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस कर रहे हैं लोग, तो वो कैसे लोग इसको हैंडल करें? हार्ट देखिए, ये सब जो मैंने बोला हार्ट की प्रिवेंशन के लिए, ये हम क्या प्रिवेंट कर रहे हैं? हम प्रिवेंट कर रहे हैं कोलेस्ट्रॉल का बिल्डअप होना हमारी नसों के अंदर। हार्ट अटैक क्या होता है? जब यही जो प्लाक होते हैं वो रप्चर कर जाते हैं और उसके ऊपर फिर क्लॉट बन जाता है, क्योंकि जो अंदर का सामान निकलता है वो बड़ा क्लॉट फॉर्मिंग होता है। तो हार्ट अटैक होना जो ब्लॉकेज किसी को हैं, हार्ट अटैक के ट्रिगर होते हैं, मतलब कि ब्लॉकेज तो मे भी काफ़ी लोगों के अंदर होंगे, बट उनमें से कुछ लोगों का ही हार्ट अटैक होता है। वो हार्ट अटैक क्यों होता है? क्योंकि उसको या तो इमोशनल स्ट्रेस हो गया या फिज़िकल स्ट्रेस कर दिया उसने, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर दिया, या इमोशनली इतने हो। आपने अक्सर देखा होगा कोई भी बुरी न्यूज़ सुन के लोगों को अक्सर हार्ट में पेन हो जाता है। तो ये हार्ट अटैक के ट्रिगर्स होते हैं। ये ट्रिगर्स इन्फ्लेमेशन से भी हो जाते हैं, जैसे बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हो उससे भी ट्रिगर हो जाते हैं। तो हार्ट अटैक करने का सबसे सिंपलेस्ट काम है कि आप ज़िंदगी में टेंशन, एंग्जाइटी ना लें, और उसको अगर है आपको, कई लोग एंग्शियस होते हैं, तो उसको कर्व करने के लिए आप मेजर्स लें ताकि आपका स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी, जैसे योगा कर लिया, मेडिटेशन कर लिया, इससे थोड़ा स्ट्रेस एंग्जाइटी लेवल कम है। और ऐसा कुछ नहीं है दुनिया में कि आपको स्ट्रेस या एंग्जाइटी होनी चाहिए। क्या ऐसा लगता है सर कितने मरीज अब तक देश में हैं? बहुत ज़्यादा मरीज हैं हार्ट डिजीज। सर, जब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए? जब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है जैसे आम आदमी को, तो उस टाइम कोई एक्सरसाइज है कि उस टाइम वो करना चाहिए? नहीं, पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि सांस क्यों फूल रही है, उसका कारण क्या है। जो अक्सर लोग नहीं समझते हैं, सांस का जो कॉमनेस्ट कारण मैं देखता हूँ वो है स्टेमिना का कम होना। लोग अगर चलते नहीं हैं, जो कि लॉकडाउन में स्पेसिफिकली जिन्होंने बंद किया वो अभी चलते हैं तो उनका सांस फूल रहा है क्योंकि उनका स्टेमिना कम हो गया। ये अक्सर मैं पहले इस कोरोना से पहले भी देखता था, लेडीज़ जिनके घुटने ख़राब हैं, जेंट्स जिनके घुटने ख़राब हैं एज के मुताबिक, वो चलना बंद कर देते हैं और उनको बाथरूम तक जाने में भी सांस फूलता है। तो पहले तो हमें कारण ढूंढना है। अगर कारण स्टेमिना कम होना है इन सब चीज़ों की वजह से, तो आपको अपना स्टेमिना बढ़ाना है। जैसे कि वॉकिंग करनी है, उसमें वॉकिंग का कोई नहीं है, बट अगर सांस की फूलना हार्ट की प्रॉब्लम की या लंग की प्रॉब्लम की वजह से है तो उसका पहले इवैल्यूएशन करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। भूमिका देखने को हर बार मिलती है, तो अब की बार किस तरह से कैनविन ने यहाँ पे पहल कर लिया? सबसे पहले तो मैं सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को वर्ल्ड हार्ट डे की मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और सबसे पहले मैं अपील करना चाहता हूँ कि जिस हिसाब से हमारा पर्यावरण दूषित हुआ है और जिस हिसाब से हमारे खान पान में पेस्टिसाइड्स बढ़ गया है, तो हमें खुद को डॉक्टर अपना खुद का बनना पड़ेगा। हमारे डॉक्टर कर्नल संधू ने बातें बताई, सारी बातों के निचोड़ के 3-4 बातें निकल के आती हैं कि हमें सबसे पहले तो खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओवर बर्डन ना पालें, छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढें, हंसने की कोशिश करें। साथ साथ हमारे मेजरमेंट्स जो भी हैं बॉडी के, चाहे वो BP है, शुगर है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, उसको प्रॉपर तरीके से चेक करवाते हैं, उसको मेंटेन रखें। और तीसरी चीज़ है कि हमारी जो आहार है, हमारा जो खाना पीना है, वो बैलेंस डाइट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम पश्चिम सभ्यता की तरफ बढ़ने लग गए हैं, ये बड़ा पाव, छोले भटूरे, समोसे, ये तली हुई ज़्यादा चीज़ें या जंक फूड ज़्यादा खाने लगे हैं। लेकिन जो स्वाद हमारे अपने देसी खाने में है, चाहे हम पहले चटनी रोटी खा लेते थे, दाल सब्जी रोटी जो खाते हैं, उसी बैलेंस डाइट पर हमें दोबारा आना होगा। और नंबर 4 चीज़ है हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने के लिए हमारा कितना भी व्यस्त जीवन क्यों ना हो, हमें समय निकालना ही पड़ेगा। और उसके लिए बहुत सारे तरीके हैं। आपको काम करना है, हमारा 24 घंटे फ़ोन साथ में रहता है, आप वो करते करते आप अपना काम कर सकते हो, साथ साथ अपनी एक्सरसाइज भी कर सकते हो। और जैसा आपने बताया कैनविन, हम कैनविन संस्था
हम वचनबद्ध हैं हमारे गुड़गांव के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य देने के लिए, उनको हर तरीके की हेल्प करने के लिए। आर्टेमिस हॉस्पिटल का मैं धन्यवाद करता हूँ कि हमारी गुजारिश पे ये 20 से 25% तक डिस्काउंट सभी मरीजों को देते भी हैं, और हर तरीके की सुविधाएं, चाहे वो अच्छा ट्रीटमेंट देने की हो, चाहे उनका देखभाल करने की हो, डिस्काउंट की हो, चाहे वो IPD OPD लैब टेस्ट में हो, सब में डिस्काउंट कर देते हैं। मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और जैसे इनकी हमारी ड्यूटी रहती है, हम हर एक फंक्शंस को, हर एक डे को मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और उसको एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं ताकि उसका एक मैसेज ज़्यादा तक पहुँचे। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप 6 और 7 के बीच में 6:30 बजे के आसपास उठता हूँ, तो मैं 15-20 मिनट में फ्रेश होकर के सबसे पहले मैं थोड़ी सी 15-20 मिनट की योगा करके करीबन 40-45 मिनट की रिस्ट वॉक करता हूँ। तो वो मेरा एक रूटीन का काम है, और कभी सुबह हो सकता है कभी मिस भी हो जाए तो मैं शाम को कर देता हूँ। तो मैं डेली करता हूँ और हफ्ते में 4 दिन मैं जिम जाता हूँ। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।